Ladies, gentlemen, and children, a very happy Indian Independence Day to all of you. On this day, 1947, after decades of struggle and resistance and countless freedom fighters, India became a free nation. That freedom was today, as our national rises above Gandhi Vihar, let's pause and remember what this flag represents. The saffron color reminds us of courage and sacrifice. The white color stands for peace and growth, green for growth and prosperity. And the Ashoka in the center reminds us that we must always keep moving forward together as one nation. I can tell you that the spirit of sacrifice and service, the spirit of freedom, is the same thing that is the spirit of this day. Mr. Naveen Tolia. Mr. Naveen Tolia is a former gentleman cadet of IMA, whose journey took an extraordinary turn when a training accident that is all of you must be aware during the obstacle course just before passing out. He met with an accident and he got paralyzed. Rather than to find his limits, he turned it into the foundation of an extraordinary life. He went on to set a world record during driving non-stop for 55 hours from Delhi to Marsala, the highest motorable pass on earth. And his height is 18,600 feet. Mr. Tolia is also a celebrated author, writing in Hindi, Urdu and English. His books including In Quest of the Last Victory, I repeat it again, In Quest of the Last Victory, and Veer Isko Janiye have inspired leaders across the country. He is a much sought after speaker, having addressed at IIT, IIM, NDA, IMA, and taken part in Mr. Tolia has founded a charitable trust, AATA, near Jajjal, where he dedicated himself to the welfare, education and upliftment of underprivileged and orphaned children, proving that true strength lies in lifting others as you guide. For his contributions, he has been honored with several prestigious awards, including the Karmir Chakra and National Model Award. His God was from DCL, our secretary over here. A big round of applause for them. Thank you. एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और ये हो रहा है और दिन में सुबह 15 अगस्त मनाया था और अभी हरियाली तीज का प्रोग्राम है नीचे। तो मैंने कहा सुबह से मैं तो थी नहीं प्रोग्राम में, मैंने कहा छोटी सी क्लिप लेके आती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हमारी सोसाइटी में हरियाली तीज कैसे मनाते हैं। छोटे छोटे खाने के स्टॉल लगे होते हैं, झूले लगे होते हैं और लोग डांस वगैरह कर रहे होते हैं। तो चलो आपको दिखाती हूँ। शीशा लग गया दोस्तों, हमारे लिफ्ट में शीशा भी लग गया। पहले शीशा नहीं था और अब लग गया। अब जब इधर उधर जाएंगे तो यहीं पे वीडियो बनाएंगे। ये हमारी सोसाइटी के
हमारी सोसाइटी नहीं, सॉरी हमारे टावर में, हमारे टावर की लिफ्ट में। सही लग रहा है ना। यहाँ से हम बाहर की तरफ आए तो अभी भी काफ़ी चटक धूप लगी हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद धूप भी आई थी। लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। हाँ, तब तुमने शॉर्ट बनाया था। हाँ और दोस्तों, जब तक हम लोग आए तब तक काफ़ी भीड़ जा चुकी थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे लोग थोड़े बहुत तो थे ही, और यहाँ पे खा रहे थे, कुछ खा के जा चुके थे, कुछ खा रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ पे काफ़ी अच्छा खाने का मेन्यू था, चाइनीज़ का, छोले भटूरे, छोले चावल, राजमा चावल और कढ़ी, स्प्रिंग रोल्स, हक्का नूडल्स और बाकी सब चीज़ें थी, कॉफ़ी थी। और यहाँ पे लेडीज़ झूला झूल रही थी, एक तरफ बच्चों का झूला था और एक तरफ लेडीज़ का। मैं तो इतना लंबा ऐसे झूलूँ तो मुझे तो चक्कर ही आ जाए, पहले से मुझे तो बहुत डर लगती है झूला झूलने में। अगर मैं थोड़ी सी स्पीड हाई होगी ना, मेरे को घबराहट हो जाती है, मेरे को बाप रे मैं गिर जाऊँगी। और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरे दोस्त लोग तो जा चुके थे क्योंकि मैं लेट आई थी, बट मैंने कहा छोटी सी क्लिप लेके आती हूँ, क्योंकि पिछली बार देख लिया हमने प्रोग्राम, अब देख लिया है, अब चलते हैं घर। इतनी अभी भी इतनी धूप लग रही है ना, चलो चलते हैं घर। पीछे कितना क्लीन लग रहा है ना, 2-3 दिन से बारिश हो रही थी इसीलिए। और यहाँ पे ना छोटे छोटे अनार के पौधे हैं, तो पेड़ ही हो गया है ये, कुछ तो अच्छे से मतलब पक भी चुके हैं और लोग ले जा भी चुके हैं। और ये हमारी सोसाइटी मतलब हमारे टावर के बगल में था। उसके बाद हम लोग अंदर की तरफ जा रहे थे लिफ्ट में, बिकॉज काफ़ी धूप हो रही थी, तो हम लोगों ने थोड़ी देर वहाँ पे देखा और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। हम आ चुके हैं और साथ ही साथ मैंने कट कर दिया है ये ड्रैगन फ्रूट, जो कि मेरा फेवरेट है, तो मैं खाती रहती हूँ, खा लेती हूँ। वैसे भी देखना भी 4-5 बजने पर फिर भी कितनी गर्मी हो रही है, तो मैंने ड्रैगन फ्रूट काट लिया है। चेंज करते हैं, फ्रूट वगैरह खाते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। चलो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी सीधा बात हो रही है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे में मॉर्निंग हो गया है, थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा कर दिया है और मैं नहाने जा रही थी। मैंने आटा गूंद दिया, तो हस्बैंड ने बोला पनीर भुर्जी मैं बनाता हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। किचन में गाने चला रखे हैं। बोला कि अभी कुछ दिन पहले मैंने बनाई थी, तो बोला तुमने अच्छी नहीं बनाई थी, तो मैं बनाता हूँ। मैंने कहा तो बनाओ फिर। वैसे भी कल ना क्या हुआ, दूध फट गया था हमारा। मैंने दूध गर्म करने को ही पूरा 1 किलो दूध फट गया। डेट भी थी 3-4 दिन तक की दूध में, बट फिर भी इसलिए मैंने उसमें नींबू डाल के बना दिया। तो अभी लेके चलती हूँ हस्बैंड के पास, बना रहे हैं। तो यार मैंने सोचा कि कुछ आज अच्छा खाते हैं, आज छुट्टी है वैसे भी। मैं तो बनाती ही नहीं हूँ अच्छा, तो इसलिए वही मतलब समझ गए ना तुम ये बोलो ना, तुम पता नहीं कितने दिन बाद बना रहे होंगे पनीर भुर्जी। हाँ, बस खाने लगे हम, काफी दिन बाद बना रहे हैं। वो एक्चुअली कल ना दूध फट गया था जब मैं दूध गर्म कर रही थी। तो फिर जब दूध फटा तो मैंने उसमें थोड़ा नींबू डाल के उसको अच्छे से फाड़ के पनीर ही बना दिया। तो मैंने कहा आज पनीर भुर्जी उसी की खा लेते हैं। तो अभी इंडक्शन में बना रहे हैं हम। तो वैसे गैस सिलेंडर है, बट हम सोच रहे हैं ख़त्म ना हो जाए जल्दी। हमारी पाइपलाइन लगने में भी कुछ दिन है, इसीलिए हम थोड़ा बैकअप लेके चल रहे हैं। ऐसे तो हमारा सिलेंडर ज़्यादा दिनों तक चलता है, बट फिर भी
पर फिर भी अभी हो रहा है दिन का टाइम और सुबह तो हस्बैंड ने थोड़ी हेल्प करी थी भुजिया बनाने में, और सोच रही हूँ अभी कढ़ी चावल बनाऊँ। काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं कढ़ी चावल बनाओ कढ़ी चावल बनाओ, तो आज मैं सिंपल वाली कढ़ी, क्योंकि मैंने कहा पकोड़े वाली बनानी है तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी बदल रहा है ना, हल्का फुल्का गला ख़राब ही हो रहा है, तो कभी थोड़ा ठीक हो रहा है कभी वैसा हो रहा है, तो इसीलिए मैं कढ़ी बड़ी बनाऊंगी। मैं बड़ी वाली कढ़ी बनाऊंगी। बड़ी मैंने निचोड़ के रख दी है, उसमें नमक मसाला मिला के थोड़ी देर रख के उसको सॉटे करूँगी, थोड़ा करारा कर, मतलब थोड़ा तेल कम डालूँगी, अच्छे से करारा होता रहेगा और धीरे धीरे साइड में मेरी कढ़ी बनती रहेगी और लास्ट में बनाऊँगी मैं चावल। तो यहाँ पे मैं अमूल की दही का कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि दही वाली कढ़ी अच्छी होती है। तो ये खाने वाली दही अलग है, बट पैकेट वाली मैंने इसलिए मंगाई क्योंकि मैं इसी से ही कढ़ी बनाऊँगी, सारी नहीं डालूँगी बट इसी से बनाऊँगी। मट्ठे वाली भी अच्छी होती है पर दही वाली की बात ही अलग होती है। तो अब मैं इसमें बेसन डालूँगी और बाकी बेसिक मसाले पहले घोल तैयार कर लेती हूँ, फिर टमाटर टमाटर तो नहीं, प्याज, हरी मिर्ची और बाकी चीज़ें कट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा घोल रेडी हो रहा है, मैं इसमें बेसन के साथ मिला रही हूँ इसे। हमारे घर में बहुत टाइम बाद बन रही है कढ़ी, दिन में होते ही नहीं है तो बनती नहीं है, कभी मन ही नहीं करता। काफ़ी टाइम से तो बारिश ही हो रही थी। चलो मैं इसको कर लेती हूँ, उसके बाद में बात करती हूँ। मैंने रेडी कर दिया है, तो यहाँ पे मैं आई हूँ कड़ी पत्ता लेने के लिए। पहले कड़ी पत्ता लेके जाती हूँ, पत्ते का पेड़, फिर नीचे आ गया। मैंने पता इतना कट कर दिया था, फिर ये डंडी फिर हो गई, फिर बांधना पड़ेगा इससे। तो चलो कड़ी पत्ता लेती हूँ। तो एक तरफ यहाँ पे मेरी कड़ी का घोल मतलब मैंने डाल दिया था, इसमें सारे चीज़ें डाल के, और साथ ही देखो ये करारी होने लग गई है ना, क्योंकि मैंने इसमें बेसिक मसाला डाल दिए थे सारे, और इसको 10 से 15 मिनट मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। अभी थोड़ी करारी हो जाएगी ना, थोड़ा सा तेल डाला, करारी हो जाएगी तो मैं बड़ी के साथ डाल दूँगी, तो हो जाएगी हमारी कड़ी बड़ी रेडी। ये देखो रेडी हो रही है और मस्त सा कलर आ गया। और ये ना कड़ी ना बड़ी मैंने काफ़ी अच्छी वो करी थी, करारी ना, तो मज़ा आ रहा है देखने में। अभी मैं इसको कम से कम 20 से 25 मिनट और चलाऊँगी और हमारी कड़ी बनके रेडी है। 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अंदर तो ठीक है एसी है, पर बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी से ना तबीयत ख़राब हो रही है। तो चावल ऑलमोस्ट बन गए, मैं बंद करती हूँ, थोड़ा भपनीले लगती हूँ। और अभी मैं दिखाती हूँ, हस्बैंड ना अभी गेम खेल रहे हैं। अब मैं आपको बोल रही थी ना, हस्बैंड गेम खेल रहे होंगे एज़ यूजुअल। ये अपने अलग से रूम में यही गेम वगैरह खेलते हैं जब इन्हें टाइम मिलता है। खाना नहीं खाना? बन गया होगा, बन गया होगा तो दे दो। यहाँ पे बन रहे हैं हमारे राइस, और मैं राइस फ्राई पैन में ही बनाती हूँ, मुझे पसंद है, और हस्बैंड को तो मुझसे ज़्यादा पसंद है, वो तो कुकर में चिपक जाते हैं, तो इसीलिए मैं ना खिले बनते हैं बढ़िया। खाना पीना हमने खा लिया है, और मैंने टी शर्ट चेंज कर दी थी क्योंकि खाते खाते उसमें गिर गया था खाना, जो कि मेरी टी शर्ट में हमेशा गिर ही जाता है, इसलिए मैंने चेंज कर दी। और अब आज छुट्टी का दिन है तो आराम से थोड़ी देर मूवी या सीरीज़ देखते हैं। वैसे हम अभी एक साउथ इंडियन मूवी देख रहे थे, सामंथा की, तो उसे पूरा करते हैं। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।